Hello, good afternoon, all of you. So, welcome to today's this is practical class. Okay, so this practical class also we are taking some theoretical part of practical syllabus. We are dealing in this practical class. Okay, so today's class is on propagation by seeds. So, what do you mean by seed propagation? What are important advantages, disadvantages? Okay, what is actually seed? Definition of seed, mode of formation of seed. After that, dormancy, seed dormancy. That is why, because of there are so many favorable situation, but seed is unable to germinate. So this situation is known as seed dormancy. So why it is happening? So this all thing we'll try to study in today's class. Okay. So first of all, seed. So first of all, seed, seed, it is a botanically, it is a matured ovule containing an embryo that is usually the result of. Hello. 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 So in general, in horticulture, fruit science, we are telling seed is ripened or matured ovary. Okay. So, but before that, what is actually okay? So here also it is written seed is, that is fruit. Okay. Fruit is matured or ripened ovary. Okay. And the ovule. Okay. Part. So matured ovule, it is known as seed. So botanically, seed is matured ovule containing an embryo that is usually the result of protective outer covering of seed, that is the seed coat or integument. Okay. Then some storage tissues like cotyledons as well as embryo. So this all these all components or parts of the seed. So all together will known as seed. So seed is matured ovule which contains embryo that is usually the result of protective outer covering, that is the integument, in storage tissues like cotyledons and as well as embryo. Okay, so the protective layer, it can be either a seed coat or part of fruit covering. Okay, so protective layer, they are telling it is a seed coat or integument or part of seed covering. So seed covering, that is pericarp or outer. Okay, so fruit covering also. Sometimes it is fruit covering. Okay, so that is outer peel or pericarp. So terrestrial tissue for dicots contained in the cotyledons. Okay, so in case of dicots like cashew nut, all type of pulses, seeds, beans. Okay, even sapota, jackfruit. So all these are dicots. These are dicots and varying degrees. These storage tissues are varying degree as well as they are in endosperm tissues. So there are cotyledons. Two cotyledons are there. Cotyledons are initially they are the leaves, and after that primary leaves also we are telling those, and after that they are functioning as storage tissues. Okay, during the process of seed germination, they need to provide some uh, seed to the developing embryo as well as germinating embryo. Okay, so they are functioning to for providing food like carbohydrate or other essential compounds like hormones which are required for seed germination. So storage tissue for monocot is a starchy endosperm. Okay,
इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, मतलब मोनोकॉट्स जैसे कि ये हो गया कोकोनट हो गया, एरेका नट हो गया, डेट पाम हो गया, ओके, ये सभी मोनोकॉट्स है। पाइनएप्पल हो गया, ओके, तो ये सभी मोनोकॉट्स है। उसमें storage tissues are monocots, they are starchy endosperm, जैसे कि कोकोनट, जैसे कि हम नोट, वही नट कोकोनट होता है, और अरेका नट, उसमें भी नट ही उसको हम शो करते हैं और उससे जर्मिनेशन लेते हैं। और फॉर एनी जिम्नोस्पर्म स्टोरेज टिश्यूज इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक टिश्यूज, ओके। तो हैप्लॉइड मतलब 1n और n गैमेटोफाइटिक tissues, okay, gametophytes, like male and female gametes, okay, like gametophytic tissues. So after that, formation of fruit, seed as well as embryo, okay. So the sexual cycle, which includes the development of male and female structures of the flower, so that is male and female reproductive organs, or we can also call it as androecium, that is male reproductive organ, and gynoecium, that is female reproductive organs, okay. So you know, in basic botany, you know all the structure of these things, okay. So androecium, it will have the it will have filament as well as stamen, and in that pollen grains, okay. And female reproductive organ, that is gynoecium, it will contain, it will have, इसको क्या रहेगी, ओरी, ओके, ओरी स्टिग्मा, okay, ओरी स्टाइल एंड at the top stigma, okay. So when some pollen grains from the stamens, जब जो pollen grains होते हैं वो stamen पर burst होते हैं, तभी जो प्रोसेस, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, बाद में फर्टिलाइजेशन, ये सब पॉसिबल होता है, ओके। तो उसके लिए या तो पॉलिनेटर्स लगते हैं, नहीं तो मतलब पॉलिनेटर जो कोई भी वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, हनी बी हो सकता है, या फिर कोई बर्ड्स हो सकता है, या फिर कोई आर्टिफिशियल जब होता है तब उसको हम आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। जब हम पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करते हैं और किसी फ्लावर के, मतलब फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर ब्रश करते हैं, ओके, और उसे पॉलिनेशन करने के लिए फोर्स करते हैं, तो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, और बाद में उसको फर्टिलाइजेशन, ये सब प्रोसेस हो जाती है। तो the plant propagation by seed, it is a major method by which plant reproduce in nature, okay. So in this is naturally available method for of so all of you
Any difficulty in understanding or something you don't know which section? Hello? Any difficulties you people have? Hello? You are getting my voice? No, sir. Huh? You are not getting my voice? Hello? Hello? हेलो हेलो यस सर, आ रही है हेलो वॉइस आप। अभी प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? ये हो गया क्या? आपको दिख रहा है नहीं सर प्रेजेंटेशन? आपकी नहीं सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट शेयर कर देता हूँ। हाँ सर आपकी स्क्रीन दिख रही है अब। हाँ ओके। तो ये जो इनिशियल टॉपिक है वो शायद आपने पढ़े हुए होंगे, पर ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, और ताकि हम प्रैक्टिकल है जो कुछ सिलेबस है वो तो पढ़ाना हमें कंपलसरी है, पर ठीक है। आप फिर एक काम कर सकते हैं, अगर कोई चैप्टर पढ़ाया हुआ है तो आप क्या कीजिए, आप अपने पहले सिलेबस ये कीजिए, फर्स्ट यू गो थ्रू ऑल योर सिलेबस, हाँ, थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, जिसमें कौन सा पार्ट अगर दूसरे पहले सब्जेक्ट में किसी कवर हुआ होगा और मैं वो दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ऐसे भी कोई चैप्टर रहे होंगे तो आप मुझे बोल दीजिए, मतलब मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब क्योंकि सिलेबस तो ज़्यादा है, बाकी और सारे चैप्टर भी कवर करने हैं, तो फिर रिपीटेशन नहीं होगा। ओके, या कोई और दूसरा पार्ट ऐसा हो जो पहले पढ़ाया हुआ हो, समझ में ना आया हो, और आपको मैं पढ़ाऊँ ऐसी आपकी इच्छा है तो वो भी बोल दीजिए, तो मैं वो पढ़ाऊंगा, मतलब अगर वो सिलेबस में है तो इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है, और मतलब आपको जो चाहिए वही हम आपको पढ़ाएंगे, ये ठीक है। हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है सर। आपको कम्युनिकेशन करना है, कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। ओके, तो ये पूरा इनिशियल प्रोसेस है। ओके, सो हमने देखा बाद में पहले व्हाट इज सीड। ओके, सीड क्या है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट में क्या रहता है, उनके स्टोरेज ऑर्गन्स कौन से रहते हैं। ओके, बाद में जर्मिनेशन कैसे हो पाता है, या वाइल डूइंग जर्मिनेशन वो कैसे फूड मटेरियल एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, तो ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है पूरा। बाद में ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट सीड एज वेल एज एम्ब्रियो। ओके, सो इसमें आपको ज़्यादा, मतलब हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में हम उससे ज़्यादा डीप नहीं जाते, ओवरऑल जस्ट आपको पता होना चाहिए सीड क्या है, मोनोकॉट्स डाइकोट में क्या क्या होता है, थोड़ा सा फॉर्मेशन के बारे में, इन नॉट इन डेप्थ। ओके, सो बॉटनी में आप इन डेप्थ, बॉटनी या ब्रीडिंग में, बायोटेक में आप इन डेप्थ पढ़ेंगे, और इधर और आप पढ़ेंगे, पर इसमें क्या है, जो डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, ये क्यों होती है, तो उससे हम सीड डॉर्मेंसी से कैसे बचे, उससे कैसे बाहर निकले। डॉर्मेंसी मतलब मान लो आपका सीड अच्छा है, सब कुछ परिस्थिति वो मतलब वायबल है, उसकी वायबिलिटी भी अच्छी है, जर्मिनेटिंग परसेंटेज भी उसका अच्छा आएगा फ्यूचर में, पर फिर भी ऐसे कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें रहती है जो सीड जर्मिनेशन को अवॉइड करती है। मान लो कोई भी फैक्टर हो, या मतलब फिजिकल हो सकते हैं, ओके, इंटरनल एम्ब्रियो से रिलेटेड हो सकते हैं, सीड कोट से रिलेटेड हो सकते हैं, ओके, कॉटिलिडॉन से रिलेटेड हो सकते हैं, तो ये क्या फैक्टर है, अगर उन फैक्टर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सके, मतलब मैनिपुलेट कर सके, ओके, तो रेगुलराइज कर सकते हैं हम सीड जर्मिनेशन।
ओके। और उसका मतलब सीड जर्मिनेशन रेगुलेट करना मतलब क्या है, डोर्मेंसी ब्रेक करना है इन शॉर्ट। तो इसके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या है, थोड़ा फिजिकल केमिकल ट्रीटमेंट दिया है, यूज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स दिया है, ग्रोथ रेगुलेटर्स इसको हम बोलते हैं। तो ये ग्रोथ रेगुलेटर और इसका यूज, ये सारी चीजें कमर्शियलाइज बेसिस पे हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी पाई जाती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं इसमें सीड बाद में। और सीड से रिलेटेड आपको क्या होना चाहिए, सीड प्रोपोगेशन क्या है वो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो ये सारा जानकारी हम इसमें ले रहे हैं। ओके, तो ओके तो ये क्या होता है, ये sexual cycle which include development of male as well as female structures, okay, that is androecium and gynoecium present in the flower, okay। तो या तो androecium और gynoecium या तो bisexual और hermaphrodite flower। bisexual और hermaphrodite मतलब जिसमें कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो, वो भी आपको फ्रूट दे सकता है। ओके ओके, तो जैसे कि मैंगो में हो गया, एक तो hermaphrodite रहता है, दूसरा मेल फ्लावर रहता है। तो मैंगो क्या करता है, hermaphrodite फ्लावर में आपको फ्रूट्स मिलता है। ओके, तो अगर उसको पॉलन्स चाहिए, पॉलन्स, ओके, और पोलन ग्रेन्स चाहिए पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, तो वो कलेक्ट करेगा। तो वो कलेक्ट करेगा, इधर वो मेल फ्लावर से कलेक्ट करेगा या फिर कोई दूसरे hermaphrodite फ्लावर से कलेक्ट कर सकता है उसके एंड्रोशियम पार्ट से। ओके, तो ये सारी चीजें मतलब मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स गैमेट्स होते हैं वो पॉलिनेशन में और फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। ओके, सो रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर्स टू प्रोड्यूस द एप्लाइड क्रोमोसोम नंबर। ओके, तो रिडक्शन डिवीजन या होती है। ओके, तो हैप्लॉइड मतलब n होता है, n क्रोमोसोम नंबर। सो पोलन ग्रेन्स एंड 8 celled embryo sac contains haploid male as well as female gametes respectively. Okay, so pollen grains as well as 8 celled embryo sac which contains haploid male as well as female gametes, those are coming in the process of pollination and fertilization further. Okay, so during flowering, pollens are transferred from anther to the stigma, okay, where it will get germinate. So इस process को क्या बोलते हैं, pollination बोलते हैं। pollination के बाद process शुरू होता है fertilization। तो fertilization में क्या होता है, pollen tube germinates down, okay, down the style into the ovary until it reaches to the embryo sac within the ovule। उसके बाद क्या होता है, 2 gametes from the pollen tubes are discharged into, इसमें से जो ऊपर gametes बताए गए हैं उसमें से 2 gametes from the pollen tubes are discharged into the embryo sac। So one to unite with gamete। Okay, तो ये प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द जाइगोट, और वो जाइगोट प्रोड्यूस करता है। एंड अनदर गैमेट होता है टू यूनाइट विथ एट अदर एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म। ओके, पहले तो एक जाइगोट बॉडी तैयार होता है और बाद में एंडोस्पर्म का बॉडी तैयार होता है। So this process is known as double fertilization। ये तो बेसिक है, आपको पता है, तो मैं इसमें ज़्यादा भी नहीं जाता। So zygote is diploid, okay। So by this way zygote it is diploid, that is 2n। So सर will एक बार divide डबल state फर्टिलाइजेशन of एक बार embryo। वापस से एक्सप्लेन कर दोगे आप? एंडोस्पर्म हेलो हेलो ट्रिप्लॉइड। So एंडोस्पर्म होता है जो कि ट्रिप्लॉइड हेलो होता है and divide into nutritive tissue for developing into embryo। Okay, हेलो so propagation हेलो by seed is a major method by which
plant reproduce in nature, and one of the very efficient as well as widely used propagation method. हेलो ये बहुत efficient और widely used हेलो propagation हेलो method है, ताकि हम हेलो उसको seed propagation सर डबल के लिए फर्टिलाइजेशन एक बार एक्सप्लेन Heलो source of seed is the basic as well as primary as well as source of propagation material. हेलो Any सर को आवाज नहीं जा रही छत से अपनी plant, okay. मैसेज डाल दो ना यार। हेलो हेलो हाँ हेलो सर ये डबल फर्टिलाइजेशन एक बार एक्सप्लेन कर दो ना, वो पीछे वाले पॉइंट पीछे वाली स्लाइड में था। एक मिनट ये साला ये पॉइंट। हेलो हेलो सर। हाँ सर आपको हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सर, तो मैं कह रहा था सर थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन करते जाओ। ठीक है, कौन सा आपको चाहिए? सर डबल फर्टिलाइजेशन वो सर डबल फर्टिलाइजेशन Two gametes Double are discharged into the embryo sac. Okay. तो इसमें से एक क्या होता है, यूनाइट विथ गैमेट। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट है उससे यूनाइट होता है, इससे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द जाइगोट, इससे जो जाइगोट बनता है। और दूसरा होता है गैमेट, ये यूनाइट होता है टू पोलर न्यूक्लियाई। ओके, तो इससे बनता है एंडोस्पर्म। तो ये मतलब दोनों तरह से दोनों एंड पर ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, इसके लिए इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वो मेरे पास अभी डायग्राम नहीं है, मैं उसका डायग्राम लूँगा और मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ठीक है, ये जो प्रोसेस है एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो ओके, सो हम देख रहे थे प्रोपगेशन बाय द सीड, इट इज अ मेजर मेथड बाय विच मेजर एज वेल एज प्राइमरी एज वेल एज बेसिक सोर्स ऑफ material in case of any species, so that is by seed. Okay, in nature only it is available. Okay, and one of the very efficient as well as widely used propagation method. So ये बहुत efficient है और most commonly use होता है, ज़्यादा पैमाने पर यूज होता है, और पहले से प्रिमिटिव है, बहुत एज से यूज हुआ गया मेथड है, और बहुत सारे क्रॉप में ये सक्सेसफुल है। The plant produced in this method are called as seedlings. So seedlings produced from seeds can be used as direct planting material. वो जो seedling हम या तो नर्सरी में भी हम ग्रो करते हैं, ओके, या सीड डायरेक्टली भी आपको मतलब कोई जो हार्डी प्लांट्स है उसमें डायरेक्ट सोइंग भी करते हैं ज़्यादातर, पर डायरेक्ट सोइंग उतना सक्सेसफुल नहीं देता, इसलिए हम नर्सरी में पहले प्लांट को ग्रो करते हैं, और मतलब ताकि हम इनिशियल उससे अच्छा केयर मेंटेनेंस रख सके, उसका पेस्टिसाइड से प्रोटेक्ट कर सके, उसको अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके, और जब कोई वो अच्छा पौधा या उसको हम सीडलिंग बोलेंगे, सीडलिंग, और जो अच्छा सीडलिंग तैयार हो जाए तो बाद में हम उसको मेन फील्ड पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके, सो सीडलिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स कैन बी यूज्ड एज डायरेक्ट प्लांटिंग मटेरियल। ये तो हम डायरेक्ट प्लांटिंग मटेरियल तरीके से यूज कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा क्या कर सकते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब जैसे कि ग्राफ्टिंग हो गया, बडिंग हो गया, ओके, या फिर कटिंग भी हो गया। मतलब अगर आपने बहुत अच्छा सा पौधा तैयार कर लिया, ओके, और मतलब वो एज ए रूट स्टॉक यूज होता है। रूट स्टॉक मतलब आपको जो ग्राफ्टिंग प्रोसीजर पता है, तो ग्राफ्टिंग प्रोसीजर में दो पार्ट रहते हैं, एक तो रूट स्टॉक हो गया, दूसरा साइंस स्टिक हो गया। तो रूट स्टॉक क्या होता है, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकता है करता है, और जिसको रूट सिस्टम होती है, तो उससे ऊपर कोई एक हम ब्रांच लेते हैं जिसको हम साइंस स्टिक बोलते हैं, उसको हम करेक्टली कट लेकर उसको रूट स्टॉक से ज्वाइंट करते हैं,
ओके। और बाद में ये दोनों प्लांट का उसमें कॉम्पेटिबिलिटी एक होनी चाहिए। इसमें कॉम्पेटिबिलिटी होकर वो ग्राफ्ट यूनियन सक्सेसफुल हो जाता है और दोनों एक प्लांट में डेवलप हो जाता है। ये जो प्रोसेस है उसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। मैं बाकी प्रोसेस आपको नहीं समझाऊंगा। मतलब जब कभी ये आए मौका आए तब एक बार। मतलब दूसरा होता है बडिंग होता है। बडिंग में बर्ड एज अ साइन होता है। छोटा वो बर्ड पोर्शन लेकर उसको अटैच करते हैं और उसको नए प्लांट में डेवलप करते हैं। ओके, ये ग्राफ्टिंग बडिंग कुछ लेयरिंग हो गया। सर तो वो रूट स्टॉक से कनेक्ट करते हैं क्या बर्ड 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 को? हाँ, मतलब जो बडिंग प्रोसीजर है ना, सर आपकी आवाज कट रही है, ग्राफ्टिंग बहुत ज्यादा नेटवर्क ग्राफ्टिंग में इशू है। एक मिनट। मुझे नहीं लगता नेटवर्क इशू है। नहीं, तो ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग में हम एक सीड उसको जर्मिनेट करते हैं। या तो पॉलीबैग में जर्मिनेट करो या पॉट में जर्मिनेट करो और उसको अच्छा सा पौधा उगा लो। ओके, उसको नर्सरी में ही हम केयर एंड मेंटेनेंस लेकर उसको उगा लेते हैं। तो बाद में क्या करते हैं, वो जो पौधा तैयार होता है उसको हम रूट स्टॉक मानते हैं। रूट स्टॉक मतलब जो ग्राफ्ट होता है उसमें एज ए रूट पोर्शन वो रूट सिस्टम प्रोवाइड करता है। रूट सिस्टम का ये क्या होता है फंक्शन? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, पौधे ऊपर के पार्ट को वाटर। ट्रांसपोर्ट करना, अच्छे करना, जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से है, न्यूट्रिएंट और वाटर, ये सारा एब्सॉर्ब करने का मतलब बाकी के पार्ट्स को प्रोवाइड करने का काम इन दोनों टिश्यू का होता है, जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं। तो उसमें क्या करता है, रूट सिस्टम हेल्प करता है। तो अगर हम ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, कोई दूसरा एक ब्रांच लेकर, जैसे मान लो आम का अगर आप बनाते हो, तो क्या करते हैं, जो रूट स्टॉक है उसको एक नॉच देते हैं, पूरा ट्रांसफरस कट देते हैं। एक 5 सेंटीमीटर उसको हाइट रख के बाकी का पोर्शन रूट स्टॉक का कट करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर हाइट लेकर 5 या 6 सेंटीमीटर लेकर कट किया, और उसमें भी फिर जो पेंसिल थिकनेस का होना चाहिए, वो पेंसिल थिकनेस का होने के बाद उसको एट द सेंटर ऑफ दैट रूट स्टॉक हम ट्रांसफर कट देंगे। ओके, तो ट्रांसफर कट देते हैं। बाद में क्या करते हैं, हम एक साइन स्टिक लेते हैं, उसमें भी नॉच देते हैं जो कि वी शेप का हो या वेज शेप का हो, और उसको वो ट्रांसफर कट में फिट करते हैं। बाद में उसको ग्राफ्टिंग टेप या पॉलिथीन टेप लेकर उसको अच्छे से फिट करते हैं। ओके, तो ये सारा चीज सक्सेस होने में 1 महीना या 40 दिन लग जाते हैं। तो इसको हम ग्राफ्टिंग प्रोसीजर बोलते हैं। मतलब ये जनरल, इसमें बहुत सारे टाइप है, ग्राफ्टिंग के 10 12 15 टाइप है। तो इसमें एक कॉमन टाइप आपको बताया। और दूसरा बडिंग होता है। बडिंग में क्या करते हैं, बडिंग में ये पूरा ब्रांच यूज नहीं करते। बडिंग में जैसे कि मान लो रोज में किया, तो रोज का एक रूट स्टॉक लेंगे, उसके ब्रांच पर एक ऐसा राउंड पोर्शन करेंगे, राउंड या ओवल पोर्शन करेंगे, और दूसरे साइन से हम बर्ड कलेक्ट करेंगे। बर्ड मतलब क्या है, जिधर से ब्रांच उगाती है उसको हम बर्ड बोलते हैं। एनी न्यू शूट्स आर कमिंग, तो वो पोर्शन हम मतलब मान लो छोटा सा पत्ती आ रहा है इसको ब्रांच को, तो वो सिर्फ आउटर बार्क का पोर्शन हम रिमूव करते हैं। सॉरी, बार्क नहीं, पिल पिल बोलते हैं उसको। तो ग्रीन कलर का अगर मान लो रोज में है, तो सिर्फ वही बर्ड पोर्शन हम रिमूव करेंगे। थोड़ा सा इसका पिल का पोर्शन, आउटर जो पिल या उसको बार्क बोलते हैं, तो थोड़ा आउटर पोर्शन वो लेकर हम पूरा राउंड ये करके उसको अच्छे से, जिधर हमने रूट स्टॉक को पैच किया है राउंड शेप में, उसको उधर बिठा के उसको अच्छे से टाई करेंगे। इस प्रोसेस में भी 1 महीना सक्सेस में लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी साइन रहता है और रूट स्टॉक रहता है, पर जो साइन रहता है वो मिनिएचर फॉर्म में रहता है, ताकि तो हम उसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। तो इसको बडिंग बोलते हैं। ये ग्राफ हो गया ग्राफ्टिंग, बडिंग हो गया। ऐसे लेयरिंग होता है। लेयरिंग होता है मतलब क्या होता है, मान लो अगर कोई मैंगो के पेड़ पर एक ब्रांच है, तो उस ब्रांच को हम, जो वो ब्रांच जब मैंगो के पेड़ पर अटैच हुई हो, तभी हम उसको कुछ ऐसा कट देते हैं, गर्डलिंग करते हैं, रिंगिंग करते हैं, और उसको रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स करते हैं। और मान लो एक बार उसने रूट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो बाद में 10-15 दिन में उसको
मेन मदर ट्री से काट करके अलग करके दूसरी जगह प्लांटिंग करने के लिए लगा सकते हैं। तो ये हो गया लेयरिंग प्रोसीजर हो गया। कटिंग्स मतलब आप जानते हैं किसी भी ऑर्नामेंटल से हम कटिंग ले सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट से, या फिर इसमें भी लेते हैं फ्रूट प्लांट्स में फिग होता है, अंजूरा होता है, जो पोमोग्रेनेट होता है, ओके, ग्रेप्स से कटिंग देते हैं, ओके। ऐसी बहुत सारे चीजें हैं जिससे हम ग्राफ्टिंग बडिंग। तो ये सारा क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या सेक्सुअल प्रोपगेशन हो गया, ओके। तो इज इट क्लियर? हेलो 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 Sir, if you use some diagrams, it will be easier for us to understand. ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर से डायग्राम इनकॉर्पोरेट करने, सो ये सजेशन चाहिए मुझे, अच्छा लगा सजेशन। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम, ये पहला दूसरा लेक्चर है ना, तो हमें भी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मतलब बताइए, तो हम डायग्राम इंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो मैं डायग्राम इंक्लूड करूंगा, ठीक है? Yes, पर sir. वो मैं वही बोल कोई रहा तो कुछ तो बात आपको समझ में आ रही है या तो? था। आज हाँ, मतलब कुछ ये बहुत इजी चीजें है, ये पूरा ये भी नहीं है, सारा टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल थिंग्स है ये, प्रोपोगेशन, ओके, नर्सरी और प्रोपोगेशन और इजी चीजें है, layering, पर drafting, budding. नेक्स्ट टाइम से हम डायग्राम से इंक्लूड करेंगे, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, प्लांट प्रोड्यूस्ड आर नोन एज सीडलिंग। सो ये भी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हम सीड से जो ये बनता है, प्लांट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये सीडलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ओके। तो सीडलिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड, कैन बी यूज्ड इन डायरेक्ट प्लांटिंग, मैंने बताया, या तो डायरेक्ट प्लांटिंग में यूज कर सकते हैं, या फिर रूट स्टॉक करके भी आप यूज कर सकते हैं इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सो रूट स्टॉक मैंने बताया मैंगो में यूज करते हैं, या किसी भी तरीके से हम रूट स्टॉक एज रूट स्टॉक यूज कर सकते हैं, ओके। सो रूट स्टॉक की भी बहुत अच्छी क्वालिटी हो, रूट स्टॉक हम क्यों यूज कर सकते हैं? रूट स्टॉक के बहुत अच्छे गुण होते हैं। कोई रूट स्टॉक सॉल्ट सलाइन टॉलरेंट होता है, कोई डॉर्फिंग इफेक्ट देता है। मैंगो में बहुत सारे ऐसे रूट स्टॉक है। तो डॉल्फिन इफेक्ट क्या होता है? क्या क्या? डॉल्फिन इफेक्ट डॉर्फिंग इफेक्ट मतलब क्या है? एक मैंगो में ये होता है, जो रूट स्टॉक होते हैं ना, अगर वो रूट स्टॉक हमने यूज किया और उस पर कोई भी साइन आपने ये किया ना, तो रूट स्टॉक वो प्लांट की हाइट कम करने में मदद करता है। तो ऐसे बहुत सारे डॉर्फिंग रूट स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं। अगर अपने को प्लांट की हाइट कम रखनी है, मतलब उसका कैनोपी लिमिटेड करना है, मतलब छोटा पौधा चाहिए, वो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ड्रॉप से ही वेराइटी, कम, ड्रॉप 2 वेराइटी। मीटर तक होना चाहिए। नहीं, डॉर्फ वैरायटी, जो हम डॉर्फ वैरायटी पैदा करने में यूजफुल होता है, उसको हम डॉर्फिंग रूट स्टॉक बोलते हैं, ओके। तो इसको जैसे कि उसका एक इफेक्ट होता है, ये तो है डॉर्फिंग नेचर, डॉर्फिंग नेचर, सलाइन टॉलरेंट, सॉल्ट टॉलरेंट, ओके, ड्राउट टॉलरेंट, ओके। ऐसे बहुत सारे अच्छे गुणधर्म क्वालिटी होते हैं इस रूट स्टॉक के पास, ओके। तो हर एक आइडेंटिफाई किया है, हर एक रूट स्टॉक की अपनी विशेषताएं है, उसके हिसाब से वो यूज होता है। मतलब मान लो कोई सलाइन एरिया है, तो सलाइन वाला रूट स्टॉक आप यूज करो, और उसमें आप मैंगो ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे ग्रेप्स की वैरायटी है, सॉल्ट क्रेक नाम का एक रूट स्टॉक है ग्रेप में, तो जो कि सलाइन सॉल्टी एरिया में यूज होता है, ओके। ऐसे भी एप्पल में है, पीच में है, पियर में है, ओके। तो ऐसे उसके अच्छे क्वालिटी गुणधर्म होते हैं, तो भी बहुत यूजफुल है, ओके। सो बाद में क्या, डॉर्मेंसी, वायबिलिटी, ये आपको पता है। डॉर्मेंसी होती है फेवरेबल सिचुएशन, मतलब होने के बाद भी कोई इंटरनल पैरामीटर्स के बाद सीड जर्मिनेट अच्छे से नहीं हो पाता है। वायबिलिटी मतलब क्या होता है, उसका वायबिलिटी माइग्रेंस चला ग्रोथ। गया, ये जर्मिनेशन परसेंटेज कम देगा, मतलब वायबिलिटी उसका कम हो गया है। स्टोरेज टाइम, स्टोरेज करते हैं, टाइम ऑफ सोइंग, ओके, आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्न द सक्सेसफुल प्रोपोगेशन थ्रू सीड्स। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर जो मान लो सीड डॉर्मेंसी में है, तो अच्छे से जर्मिनेशन नहीं दे पाएगा, उसका वायबिलिटी कम है, वो जर्मिनेशन नहीं दे पाएगा। आपने ज्यादा देर तक स्टोर किया है, तो वो अच्छे से ये नहीं होगा। टाइम ऑफ सोइंग भी ये इम्पोर्टेंट है, किस क्रॉप का किस सीजन में सोइंग करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो सीड डॉर्मेंसी, इसमें आपको
पढ़ाई, ये चैप्टर में आपको सीड डॉर्मेंसी पढ़नी है। तो सीड डॉर्मेंसी क्या है? So it is a evolutionary adaptation, okay, that prevents the seed from germination during unsuitable ecological conditions. So that would typically lead to low probability of seedling survival. Okay. So these dormant seeds do not germinate in a specified period of time under a combination of certain set of environmental factors that are normally conducive to germination of non-dormant seeds. मतलब क्या है, certain जो situation रहते हैं वो germination करने के लिए favorable नहीं करते। ओके, तो ये हो गया सीड डॉर्मेंसी। तो उसमें क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, कोई इंटरनल फैक्टर रहते हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं। ओके, और दूसरा क्या है, मेथड टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी, ये सारा हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो डॉर्मेंसी में बी ड्यू टू, डॉर्मेंसी किससे होती है? मे बी ड्यू टू हार्ड सीड कोट, जो सीड कोट या आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, या तो हार्ड हो सकता है, जैसे कि मान लो स्टोन फ्रूट हो गया, पीच, पियर हो गया। ओके, दूसरा मैंगो में भी हार्ड सीड कोट रहता है। ओके, ऐसे बहुत सारे चीज है। दूसरा सीट्रस में भी थोड़ा सा हार्ड ही रहता है। ओके, पीच, पियर, प्लम में तो रहता ही है। तो प्रेजेंस ऑफ सम इनहिबिटर्स, सो इनहिबिटर्स लाइक मान लो टेनिन्स होता है, फिनॉल्स होता है, पॉलीफिनॉल्स रहते हैं, ये सारे इनहिबिटर्स होते हैं, या कोई ग्लाइकोसाइड्स भी रहते हैं। ओके, तो ये अगर मतलब कोई हार्मफुल केमिकल्स अगर प्रेजेंट हो किसी चीज में, या तो एम्ब्रियो में हो सकता है, नहीं तो कॉटिलोडॉन्स में हो सकता है, तो उसका ये हो सकता है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स अगर हो सकता है, वो जर्मिनेशन के लिए अपोज करेगा। देन लेट मैचुरेशन ऑफ एम्ब्रियो का मैच्योरिटी नहीं आया हो, एम्ब्रियो का अगर जर्मिनेट तो उसका मैच्योरिटी तो चाहिए ना, अगर उसका मैच्योरिटी कम है तो उसको क्या करना है, उसको मैच्योरिटी में पहले लाना है, बाद में उसको जर्मिनेशन करने की कोशिश करते। तो ये सारी दिक्कतें आ सकती है अगर आपकी सीड जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए। सो प्रेजेंस ऑफ हार्ड सीड कोट, ये हार्ड सीड कोट किस में रहता है? एक तो बेर में रहता है, गावा में रहता है, वॉलनट होता है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इनहिबिशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, सो ये क्या हो गया, सो इनहिबिशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन स्टॉप होता है। ओके, वाटर एंड